Okay, so let us start with the topic. बच्चे, you know, life is not possible on earth without water. Do you think we can survive without water? No. Yeah, let us keep apart water. About other natural resources also. Can we live without them? No. Right? We cannot live without air, we cannot live without soil, we cannot live without coal, we cannot live without forests even, right? So all these which fulfill our needs, all these natural resources which fulfill our needs, these natural resources are of two types. How many types of natural resources are there? Natural resources are of two types. They are inexhaustible and exhaustible natural resources. Right? Natural resources are of two types. They are of inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. So let us move. What are inexhaustible natural resources? Number one, as clear from the name, in, तोड़ो इसको, exhaust. Exhaust means जो खत्म हो जाए, which gets finished, right? So inexhaust means which do not get finished, right? So inexhaustible natural resources are which are large in number, present in large quantities, which do not get finished soon, right? So you can write down resources which are available in large quantities and number two, which get renewed within reasonable period of time, which get renewed within reasonable period of time. Right? These are the natural resources, inexhaustible. क्लियर है? और इसके एग्जाम्पल हो सकती हैं एयर, सनलाइट. सनलाइट है, शाम को चली जाती है, 2-3 दिन नहीं आती, 4 दिन नहीं आती, बट आफ्टर सम टाइम इट कम्स. इट इज इनएग्जॉस्टिबल natural resource. It gets renewed, right? Then come to next, exhaustible. Exhaust as clear from the name, which gets finished so soon, right? So what are exhaustible? These are present in limited quantities. They are present in limited quantity, right? क्लियर है? देन नेक्स्ट है, इफ दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी मीन्स दे कैन बी फिनिश्ड इफ नॉट यूज्ड वाइजली. अगर हम इनका वाइज यूज नहीं करेंगे तो दे कैन बी फिनिश्ड, राइट? एंड इफ नॉट यूज्ड वाइजली, ये साथ में मेंशन करेंगे हम. देन टेक सो मेनी इयर्स टू रिन्यू. बहुत टाइम लगता है इनको रिन्यू होने में. 2-10 दिन 15 दिन की बात नहीं है. इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रिन्यू. ठीक है? इसमें आते हैं सॉइल. वेरी गुड. अब इसका आगे, एग्जॉस्टिबल का आगे, देयर आर फर्दर टू टाइप्स. एग्जॉस्टिबल की आगे मैंने अभी एग्जांपल नहीं दी है. एग्जॉस्टिबल की आगे फर्दर देयर आर टू टाइप्स. वन इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, अदर है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस. गेटिंग माई पॉइंट? राइट?
अब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज यू कैन राइट डाउन क्या होते हैं. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज which can be replenished within a reasonable time period, जिनको हम रीजनेबल टाइम पीरियड में रिप्लेनिश कर सकते हैं. अब आप कहोगे मैडम इनएग्जॉस्टिबल से इसका क्या डिफरेंस है. इनएग्जॉस्टिबल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, राइट, बट रिन्यूएबल रिन्यू हो रहे हैं मीन्स वो खत्म हो सकते हैं. गॉट इट? क्लियर है? अब रिन्यूएबल में एग्जांपल आती है हमारी सॉइल, फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, राइट. इसी तरह अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, non-renewable natural resources are those natural resources which cannot, Gautam, there is no need to repeat, everything is given in the book, otherwise we'll be doing it. Focus on non-renewable natural resources which cannot be replaced within a reasonable time period. इसके एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम. गॉट इट? कोल, पेट्रोलियम. क्लियर हो गया? एनी डाउट इन दिस? तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वाटर. वाटर, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, वी ऑल नो. किसमें आता है? रिन्यूएबल में. किसमें आता है वाटर? रिन्यूएबल में. ठीक है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में. सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए. यूजेस ऑफ वाटर. इसके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. We cannot think of our life without water. ऐसा क्यों? कैसे? क्या इतनी इंपॉर्टेंस है? तो मैं शॉर्टकट में फटाफट से आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं. जस्ट रिकैपिटुलेशन. यूजेस ऑफ वाटर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज, हाँ जी, यस, वेरी गुड, असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस. सहज, बट माई पॉइंट इज व्हाई इट इज सो असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस. यही तो मैंने पूछा है. इतना क्या है इसमें, ये क्या करता है हमारे लिए कि ये हमारी एग्जाम्पल के, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया. हर्षिता, फॉर प्लैंट्स का क्या मतलब? ड्रिंकिंग, राइट, राइट तनिष्क, ड्रिंकिंग. और प्लांट्स, ओके, राइट, राइट हर्षिका. चलिए, तो ये ड्रिंकिंग वाला जो है, इसको मैं एक ही पॉइंट में समराइज करती हूं. डोमेस्टिक पर्पसेस. डोमेस्टिक पर्पसेस में आई एम समराइजिंग इट. क्या है डोमेस्टिक पर्पसेस? ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग. ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, राइट. आई हैव समराइज्ड इट इन वन पॉइंट. ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, राइट. ये सारे डोमेस्टिक पर्पसेस आ गए तुम्हारे. क्लीनिंग, वॉशिंग, एवरीथिंग इज डन इन दैट, राइट. नेक्स्ट है इसका सेकंड पॉइंट, लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस आर मेंटेन्ड, राइट. लाइफ प्रोसेसेस आर मेंटेन्ड. कैसे? ये सारव भारद्वाज आते हैं हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे भी. लाइफ प्रोसेसेस आर मेंटेन्ड. कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस में ये इंपॉर्टेंट है? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा. इनमें ये इंपॉर्टेंट है, राइट. राइट आरव भारद्वाज. थर्ड हो गया हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये सारे इसके अंडर आ जाएंगे. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड, राइट. और यस, इसमें सहज ने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, उसमें भी इंपॉर्टेंट है.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये लाइफ प्रोसेसेस में आएगा, लाइफ प्रोसेसेस के अंडर कवर हो रहा है। देन नेक्स्ट, उसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज टोल्ड बाय आरव, एंड इरिगेशन, राइट, इरिगेशन और एनीथिंग एल्स? वेरी राइट आरव भारद्वाज, maintaining of body temperature, maintaining body temperature. How body temperature is maintained? By sweating, right? Yes, very good. It is habitat of some organisms. Sixth आ गया habitat. Many plants and animals survive in this, or anything else? It is required by plants during photosynthesis, on and on. मतलब ये बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हम लिख भी नहीं पा रहे हैं, राइट? यस, इरिगेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ वाटर, मेजर यूजेस जिनके बिना लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, राइट? लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट दीज, ओके? सो अगर इतने सारे काम वाटर हमारे लिए कर रहा है, जस्ट इमेजिन अगर वाटर ना हो, ये सारे काम पॉसिबल हो? नो, दीज वर्क्स वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट वाटर, ओके? तो वाटर इज सो एसेंशियल फॉर अस, क्लियर है? नेक्स्ट आता है, अब पानी अगर इतना चाहिए हमें, वी नीड सच लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी, ओके, चलो वन ऑफ द यूजेस। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अगर वाटर इज सो इम्पोर्टेंट टू अस, तो इट मीन्स हम इतने सारे काम कर रहे हैं वाटर से, इट मीन्स पानी बहुत सारा होगा हमारे अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे बहुत पानी होगा ना, अगर हम इतने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा पानी है। कितना पानी अवेलेबल है? How much water is available on earth? Students, you know our earth, who is saying 78%? Wrong, Gautam. Water is 71% on earth. On the whole planet, we have 71% of water. And if we look from far away, due to this water, our earth looks blue. That is why it is also called blue planet. Got it? That is why earth is also called blue planet. Now this 71% is available. अब इस 71% का 97.5%, इस 71% का 97.5% is present in seas and oceans. Means ये सारा पानी, it is saline. This water is saline. So this water is not fit for use, right? अब इस 97.5 में से हमारे पास क्या बचा? 2.5% जो सलाइन नहीं है। इस 2.5% में से 1.7% is present in the form of frozen ice. 1.7% is present in the form of frozen ice. Right? अब इसमें से क्या बचा? If we minus it, 0.8%,
only 0.8% of water is present as fresh water in the form of rivers, lakes, right? And this water, only this amount of water is fit for human consumption. Got it? Only this amount of water is fit for human consumption. Clear है? Is this clear to all, to everybody? मतलब negligible amount, 71% टोटल अर्थ पे पानी हो, ठीक है, उसमें से 97.5% तो सलाइनी हो गया इन द सीज एंड ओशंस, जो बचा उसमें से भी 1.7% तो फ्रोजन फॉर्म में इन पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स, राइट, और 0.8% इज प्रेजेंट एज फ्रेश वाटर, जो हमारा ग्राउंड वाटर है या रिवर्स में है या लेक्स में है। डर्टी वाटर भी अंशुमन, हम कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं? ये वाला, ये जो हमने डर्टी किया है इसको यूज कर रहे हैं हम, ना तो सलाइन वाटर को यूज कर रहे हैं, कर पाएंगे ही नहीं, ना हम आइस कैप्स को यूज कर रहे हैं। क्या हम हिमालय की बर्फ को काट के उसमें से पानी निकाल रहे हैं? नो, डर्टी वाटर प्योरीफाई नहीं हो सकता सहज, उसमें से हम सॉल्ट कर निकाल सकते हैं, बट दैट कंटेन्स so much of minerals, so much of other salts which may not be fit for our consumption, right? And it is a very difficult process. Is that clear? Now coming to next topic है forms of water. Our next topic is forms of water. फॉर्म्स ऑफ वाटर, राइट? तो बेटा कितनी फॉर्म्स है वाटर की? वेरी गुड। वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर की क्या फॉर्म्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर की फॉर्म्स क्या होंगी? आइस, सिंपल वाटर एंड वाटर वेपर। गॉट इट? यस, स्नो, वाटर एंड वाटर वेपर। तो स्नो जो हमें मिलती है कहां से मिलती है? इन ग्लेशियर्स, इन पोलर आइस कैप्स एंड ऑल, राइट। लिक्विड मिलता है हमें ओशंस, लेक्स, रिवर्स में, और गैसियस फॉर्म होती है इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, राइट। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन दैट अमाउंट, राइट। क्लियर है? और इनकी आपस में सर्कुलेशन होती रहती है। कभी आइस से वाटर बन गया, वाटर से वाटर वेपर बन गया, फिर वाटर वेपर से आइस बन गई, इस तरह की सर्कुलेशन होती रहती है। इसी कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन की वजह से एक कांस्टेंट वाटर लेवल मेंटेन रहता है अर्थ पे। गॉट इट? इज दैट क्लियर? My point is clear to all? Now students, ये जो continuous circulation है water की from the earth to the atmosphere back to the earth, it is known as water cycle. क्या बोलते हैं इसको? Water cycle. What is water cycle? You can write down: continuous circulation of water, continuous circulation of water from the earth's surface and water bodies, from the earth's surface and water bodies as water vapor,
to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth's surface as rain, hail and snow. I repeat, continuous circulation of water from earth's surface, continuous circulation of water from the earth's surface and water bodies as water vapor to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth's surface as rain, hail and snow. As rain, hail and snow. Clear? Now, ये तो हो गई वाटर की इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ स्लोगन्स लिखे होते हैं, लाइक जल है तो कल है, मीन्स अगर पानी है तो हमारा फ्यूचर होगा, अगर पानी खत्म हो जाएगा देयर वोंट बी एनी फ्यूचर। और इस पानी के बचाव के लिए, टू सेव द वाटर, टू प्रोटेक्ट द वाटर, टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द सेविंग ऑफ वाटर, you all know we celebrate World Water Day on 22nd of March. When do we celebrate World Water Day? On 22nd of March, right? On this day, so many competitions are organized in schools, right? Like slogan writing, poster making, हम भी करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, right? तो why it is done? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? Because we people जिनके पास वाटर अवेलेबल है, we are wasting the water. And there are certain people around the world who don't have water to drink even, and we people are wasting it. कल आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगी मैं, उसके लिए आप ही को सामान लेके आना है। What you have to do? एग्जैक्टली सहज, जब 0.8 वाटर खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसी के लिए हम कह रहे हैं कि हमें वाटर को सेव करना है। कल एक एक्टिविटी करनी है, मैं भूल जाऊंगी, आप याद रखना। क्या क्या सामान लेना है आपने? एक बकेट, एक मग, स्पून, ग्लास और वाटर। बकेट वाटर की भर लेना, ठीक है, अपने पास रखना। देन आई विल टेल यू व्हाट इज टू बी डन। ये सारे बच्चे करेंगे हम। इज दैट क्लियर? क्लियर है? एक सिंपल एक्टिविटी। ये एक्टिविटी करनी क्यों है? एक्चुअली जो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, उसने रिकमेंड किया है कि हर इंसान को बकेट, सिंपल बकेट है जिसमें हम नहाते हैं, भौमिक, सिंपल प्लास्टिक की बकेट या स्टील की बकेट, ठीक है, जिसमें पानी हम स्टोर करते हैं। चलिए, तो ये क्यों एक्चुअली, ओके भौमिक, चलिए। amount of water recommended by United Nations to do daily household work is minimum 50 liters per person. 50 liter per person. No, Anshuman, how can we get fresh water from seas? If seas is having saline water, we cannot take fresh water from it. अगर ये कर पाते हम, तो अब तक तो पानी की समस्या, आरओ भारद्वाज, कैंट आरओ में सलाइन वाटर प्योरीफाई नहीं होता।
आप सिर्फ इतनी बात समझो, केंट आरओ में जो फ्रेश वाटर गंदा हो गया, जिसमें इम्प्योरिटीज मिल गई हैं, सिर्फ वही क्लीन होके आता है, अदरवाइज तो हम सीज भी खाली कर चुके होते। गॉट इट? अंशुमन, आई होप यू विल फाइंड, बट अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अब जब तक हमारे पास या जब तक आप इसको फाइंड आउट नहीं कर लेते कि हम सीज के वाटर को कैसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करें, तब तक हमें पानी को बचाना है। गॉट इट? क्लियर है? तो यूनाइटेड नेशंस ने रिकमेंड किया है कि पर पर्सन ड्रिंकिंग बाथिंग के लिए वी नीड 50 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, राइट? तो अगर, और ये 50 लीटर पानी कितना होता है? 50 लीटर पानी कितना होता है? कितना पानी होता है 50 लीटर? 50 लीटर कितना होता है भौमिक, कोई अंदाजा? कितने ग्लास? इट इज अबाउट 2 या 2.5 लीटर बाल्टी। 2 आरव भारद्वाज, थैंक्स फॉर कन्वर्जन्स। 2 या 2.5 लीटर बाल्टी 50 लीटर पानी होता है। यस अंशुमन, 50 ग्लासेस, राइट। भौमिक राइट, 1 लीटर के 50। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम सिर्फ 2 से 2.5 बकेट पानी की रोजाना यूज कर रहे हैं? इतना तो हम जब हम नहाने जाते हैं तब यूज करते हैं, है ना? और वो कह रहा है कि पर पर्सन ये हमें हर रोज ड्रिंकिंग। अच्छा आरव भारद्वाज, नहीं, कितनी बकेट से नहाता है तू? हाफ। वॉमिक नहाता है या सिर्फ स्मेल करके आता है? हाँ, चलो लेट अस फोकस हियर। अगर आप इतना पानी ना कभी कभी, ओके ओके राइट, इतना तो हमारे टैंकर में रोज भरा जाता है। ओके ओके ठीक है सहज, 1 बकेट रमनदीप सिंह। उसके बाद खाना, उसके बाद घर की सफाई, उसमें क्या तुम सिर्फ इतना ही यूज करते हो? नहीं। चलो, तो उन्होंने पर पर्सन ये बताया है। अगर आपको इतना पानी अवेलेबल है, आपकी बुक कहती है, देन यू आर लकी नाउ, क्योंकि देयर आर पीपल जिनको हाफ बकेट भी नहीं मिलता। आपने देखा होगा कई बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, हम मूवीज में भी वी फाइंड आउट, या वैसे भी हमें पता है कि जहां पे बहुत लंबी लंबी लाइंस लगती हैं टू फेच वाटर। टैंकर्स आते हैं जहां पे उस एरिया में वाटर अवेलेबिलिटी है ही नहीं है। गुरप्रताप, आप बकेट से वापस आ जाओ, आगे फोकस करो। जहां पे लंबी लंबी लाइंस लगती हैं, पीपल हैव टू स्टार्ट इन द मॉर्निंग टू गेट द वाटर, और वो पानी भर के, बाल्टियां भर के शाम तक आते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। सो अगर हम वाइजली वाटर को यूज नहीं करते तो हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस है वो भी यही सब करेंगी, राइट? इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, कल मैंने आपको बताया है, आते ही एक छोटी सी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। आपको एक बाल्टी लेनी है पानी की, एक मग लेना है, एक ग्लास लेना है, एक स्पून लेना है। वी विल डू दिस एक्टिविटी, अपने पास रखना और ठंडा मत कर, मतलब अपने आप को ठंड मत लगवा लेना, ठीक है? राइट? और एक और आपकी बुक में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। ईयर 2003 जो है ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, इसको ऑब्जर्व किया गया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर 2003। ये एमसीक्यूज में आता है और आप छोड़ जाते हो, तो क्यों?
क्यों ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर किया गया था, अनाउंस किया गया था, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके ये पानी के, ये नेचुरल रिसोर्सेज की ये जो डिविंडलिंग हालात है, डिविंडलिंग मीन्स खराब होते हालात हैं, जो हम मझदार में फंसे हुए हैं। जो पानी हम कलेक्ट करेंगे ये बाद में वेस्ट तो नहीं होगा, नहीं सहज, इसको बाद में गर्म करके नहा लेना, ठीक है, क्लियर है, नहीं तो नहा लेना, हाँ ठीक है भौमिक, ओके, लेक्चर इज ओवर, विल डू द एक्टिविटी टुमारो एंड देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी।